Hello students, good morning. I hope you all are doing well and utilizing your time wisely. Dear students, as we all know that due to COVID-19 pandemic, the whole country has been locked down since last year. The country is struggling with schools, teachers and lack of education. Right? Most of the schools have started online classes, but in the online classes they have provided only main subjects like English, Hindi and science, right? SST. जो स्कूल्स हैं वो सारे सब्जेक्ट को लेकर आपके नहीं चल रहे हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, जीके, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी रुकी हुई हैं, स्टॉप्ड हैं। तो इस पैंडेमिक कोविड-19 का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर हुआ है बच्चों की, ठीक है। So students, my name is Nazia Parveen and today I am going to start with Rachna Sagar's Forever book. This is the book of class 6, okay. Rachna Sagar's Forever with English multi-skill course book. Okay, so they have given 7 units, as you can see in the content of this book. They have given 7 units in this book. Each unit is divided into 3 sections, right? So section A, section B and section C. So here you can say that section A and section B is the part of the literature. So section A and B जो है वो literature का part है and section C is the part of poetry. section C में एक poem दे रखी है, ठीक है। section C में सारी ये poem है। Alright, so students, today I am taking the very first chapter of this book. The name of the chapter is Birbal's Wit is a Hit. But before start this chapter, we should know about what is wit, right? So this is the first unit and the unit name is Wit and Humor. So students, what is wit? As you can see, they have given here, wit and humor are qualities of highly creative mind. Wit is the capacity of inventive thoughts and quick understanding. So we can say that wit is the quality of highly creative mind. We can say that wit is also known as intelligence, ठीक है। तो विट क्या है? विट को हम कह सकते हैं कि विट किसी की इंटेलिजेंस पावर है, ठीक है। उसकी जब आप कुछ भी बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिवली सोचते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझते हो, बहुत ज़्यादा कुछ भी आपका क्रिएटिव माइंड है और आप अपने क्रिएटिव माइंड से जो है क्विक अंडरस्टैंडिंग पावर है आपके अंदर, चीज़ों को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो अच्छे से। वेयर आज ह्यूमर इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन, फिक्शन, ओके। सो व्हाट इज़ ह्यूमर? जब आप किसी भी चीज़ों को इमेजिन करते हो ना, बच्चों में ये पावर बहुत ज़्यादा होती है, बैठे बैठे कुछ भी सोच लेते हैं, इमेजिन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, अपनी स्टोरीज़ डेवलप करते हैं माइंड में, या कुछ भी कि हम अपनी इमेजिनेशन से यहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड में कहीं भी घूम रहे हैं। इमेजिनेटिव पावर्स बच्चों के पास बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन, फिक्शन, जब आप कुछ अम्यूज़ करते हो, ओके। सो okay, let's start with this some introduction part. Akbar, the third Mughal emperor to rule almost all over India in the 16th century, was known for his contribution in the areas of art, architecture and music. It is said that during his reign
the Hindus and Muslims lived unitedly in harmony. Akbar the Great, not a literate person himself, but knowing the significance of education in one's life, provided patronage of fine arts and literature. The 9 jewels or Navratnas in his court comprise of poets, musicians, advisors and learned men. One of these eminent Navratnas was the witty Birbal, who was also a poet and an author. Birbal's wit and wisdom led the emperor to invite him to be a part of the royal court. The emperor also bestowed upon him the title like Raja and Birbal. So Bir means brain and Bal means strength. So students, हम में से सभी लोग जानते हैं मुग़ल एम्परर को, राइट, अकबर, जिन्होंने ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी में ऑल ओवर इंडिया पर रूल किया है, जो जाने जाते हैं मतलब अपने बेमिसाल आर्किटेक्चर के लिए, राइट। उनको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और उनके रीजन में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम जो थे यूनाइटेड हार्मनी के साथ में रहते थे, ठीक है। अकबर द ग्रेट नॉट अ लिटरेट पर्सन मीन्स वो एजुकेटेड पर्सन नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एजुकेशन, व्हाट इज़ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को वो अच्छी तरह से समझते थे। उनके कोर्ट में उनके पास नवरत्न थे उनके कोर्ट में, जैसे कि पोइट, म्यूजिशियंस, एडवाइज़र्स, लाइक, तो उन्हीं नवरत्न में से एक थे बीरबल, ठीक है। सो बीरबल का जो टाइटल है, बीरबल का टाइटल उन्होंने ही उन्हें दिया था। बीरबल का रियल नेम क्या था? महेश दास वॉज हिज रियल नेम। एंड बीरबल क्या है, बीरबल जो टाइटल है वो उन्हें किसने दिया था? अकबर ने दिया था, ठीक है। सो बीर मीन्स होता है ब्रेन एंड बल मीन्स स्ट्रेंथ, अंडरस्टूड। So let's start with the first paragraph of this story. This story is very interesting. Okay, so let's start. So Emperor Akbar was very fond of delicacies and had a great taste for pan, especially for those mouth-watering ones that Shaukat Ali, his official pan wala, rolled out. So Akbar, Emperor Akbar जो थे वो different फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, ठीक है। और उनको एक कह सकते हैं कि उनको हर तरह के डिफरेंट खाने की जो टेस्ट होता है, जो रियल टेस्ट होता है, वो उनको पहचानने का उनके पास एक आर्ट था, ठीक है। सो स्पेशली दोज माउथ वाटरिंग वंस, तो उनके मुंह में पानी आ जाता था जब उनको ऑफिशियल पान वाला, इस नेम वॉज शौकत अली उनका ऑफिशियल पान वाला था, जो उनके लिए हमेशा पान बनाता था। तो जब शौकत अली के पान का नाम आता था या उसके पान की जब वो सोचते थे तो उनके मुंह में क्या पानी आ जाता था, ठीक है। सो इट सो हैपेंड one unfortunate day that as Shaukat was preparing pan, the coat of lime applied got thicker than usual. The emperor had hardly taken a small bite and his tongue seemed to be on fire. Flying into rage, he sent for Shaukat Ali. Okay, so one day Shaukat Ali was preparing pan for him, for एम्पेरर अकबर। एक बार जो था शौकत अली पान बना रहे होते हैं अकबर के लिए, ठीक है। सो द कोट ऑफ लाइम, जो लाइम का जो कोट था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जितना एज यूजुअली वो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोट हो जाता है। सो द एम्पेरर हैड हार्डली टेकन ए स्मॉल बाइट, तो एम्पेरर क्या करते हैं, उसका जल्दी से एक छोटा सा बाइट जैसे ही वो अपने लेते हैं, उनकी टंग जो होती है वो ऐसा लगता है कि वो एकदम से आग में जल गई हो, ठीक है। फ्लाइंग इनटू रेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ
फ्लाइंग इन टू रेज मीन्स बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। जैसे ही उनकी टंग जो थी वो उस लाइन की वजह से उनकी टंग जल जाती है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शौकत अली पर, और वो शौकत अली को बुलाने के लिए भेज देते हैं अपने सोल्जर्स को। ठीक है, उनसे कहते हैं जाओ जाकर शौकत अली को लेकर के आओ। द मोमेंट द एम्पायर सेट हिज आइज ऑन शौकत अली ही फ्यूम्ड, योर पान बर्nt माई टंग, हाउ डू यू क्लेम to be the best pan maker in the city? You deserve the severest of punishment, you careless wretch. Okay, so जो एम्पायर होते हैं, एम्पायर वॉज वेरी एंग्री ऑन हिम, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं शौकत अली पे, क्योंकि शौकत अली के पान ने उनकी टंग को जो है वो जला दिया। ठीक है, तो वो ये कहते हैं उनसे, गुस्से से पूछते हैं कि तुम कैसे ये क्लेम कर सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इस सिटी के सबसे अच्छे पान मेकर हो, बेस्ट पान मेकर हो, तुम ये कैसे क्लेम कर सकते हो? तुम्हें तो सेवरेस्ट ऑफ पनिशमेंट, मतलब तुम्हें तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यू केयरलेस ब्रिच, तो वो उनको अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको डांटते हैं गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। शौकत अली वॉज नाउ ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है कप कपाना, डर के मारे। ठीक है, ही वॉज स्केर्ड, अकबर की बातों से वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। किस तरह से डर गए थे? लाइक अ लीफ इन द विंड, जैसे कि हवा में पत्ते जैसे हिलते हैं, उसी तरह से वो ट्रैम्बलिंग मतलब कांप रहे थे। So go fetch me a bag full of the best lime, thundered the emperor. Emperor, he said angrily to शौकत अली, वो उनसे कहते हैं कि जाओ और जाकर मेरे लिए फुल ऑफ बैग, एक फुल बैग भरकर लेकर आओ बेस्ट लाइम का। रिलीव्ड दैट हिज लाइफ वॉज स्पेयर्ड। ओके, रिलीव्ड मीन्स साइन ऑफ रिलीफ, स्पेयर मीन्स गिव समथिंग टू समबडी। वही सोचते हैं कि शौकत अली थॉट दैट द एम्पायर स्पेयर्ड हिज लाइफ टू गिव दिस मच पनिशमेंट ओनली सो दैट ही टेक्स साई ऑफ रिलीफ। वो ये सोचते हैं कि मुझे जो है जो पनिशमेंट जो अभी अकबर ने बोला कि भाई तुम्हें तो जो है बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो ये कहने के बाद उनसे कह देते हैं कि जाओ जाकर मेरे लिए एक बैग बेस्ट लाइम लेकर आओ। तो शौकत अली सुनने के बाद चैन की सांस लेते हैं। अब ये सोचते हैं कि शायद मुझे यही सज़ा मिली है कि मैं बस जाकर के लाइम जो है ख़रीद कर ले आऊँ, शायद यही मेरी पनिशमेंट है। और ये सुनने के बाद वो चैन की सांस लेते हैं। तो शौकत अली वेंट टू अ नियर बाय शॉप दैट सोल्ड लाइम। तो वो मार्केट जाते हैं और उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर लाइम मिल रहा होता है। So he didn't have the slightest hint of what awaited him. Okay, slighted means not important or serious. वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा important नहीं समझते हैं, ना ही उसको seriously लेते हैं। He did not have any idea that what's going to happen to him now. उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब उनके साथ में क्या होने वाला है, क्यों मंगाया जा रहा है उनसे इतना बहुत सारा लाइम, क्यों मंगाया जा रहा है। So have you started making pickle for the entire neighborhood? Asked the shopkeeper jovially. Jovially means curiously, मतलब वो उनका मजाक बनाते हुए कहता है शॉपकीपर कि तुम इतने सारे लाइम का क्या करोगे, क्या तुम पूरे नेबरहुड मतलब आस पड़ोस वालों के लिए क्या तुम पिकल बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हो? Of course not. I am only following the emperor's command. Shaukat Ali was now worried and frightened. Frightened means he was scared and he was worried. ठीक है, वो कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस यहाँ पर एम्पायर का कमांड जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुझसे कहा है मैं उस काम को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। डोंट इवन थिंक ऑफ disobeying that order, said महेश दास, who was observing the entire episode. सो वहाँ पर महेश दास कहते हैं कि उनके आज्ञा का पालन ना करने के बारे में सोचना भी नहीं। महेश दास कौन थे? महेश दास बीरबल, ठीक है, बीरबल जो उस टाइम
वहाँ पर बैठकर ये पूरा जो एपिसोड था वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे। आई नो दैट यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे ये नहीं कहा है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, बट फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ऑलराइट, बट बी क्विक। सो जो शौकत अली थे ना, शौकत अली वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन हिज एडवाइस, टू टेक हिज एडवाइस। वो उनका एडवाइस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी वो कहते हैं ठीक है तो जल्दी बताओ। शौकत अली कहते हैं हिज वॉइस नाउ आ क्रोक। क्रोक मीन्स ही सेड विद अ क्रोकी वॉइस मीन्स हार्श वॉइस। वो कहते हैं कि ठीक है जल्दी बताओ, और बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल अनइंटरेस्टेडली वो उनसे कहते हैं कि ठीक है बट जल्दी बताओ मुझे क्या बताना चाहते हो। हैव अ बिग बोल फुल ऑफ प्योर घी बिफोर यू गो टू द रॉयल कोर्ट सैड महेश दास। तो महेश दास उनसे कहते हैं कि रॉयल कोर्ट जाने से पहले एक फुल बोल ऑफ प्योर घी, मतलब प्योर घी का पूरा बोल जो है, बड़ा बोल जो है वो भरकर तुम उसको पहले पी लेना, उसके बाद ही रॉयल कोर्ट जाना। यू हैव नॉट नोटिस्ड माई पॉट बेली हैव यू। वो उनसे कहते हैं कि तुमने मेरी पॉट बेली, मतलब पॉट बेली में उनका जो बेली थी वो थोड़े से फैट थे, ठीक है, मोटे थे। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरा ये पॉट बेली नहीं देखा है। शौकत अली उनसे कहते हैं आई कांट इवन ड्रीम ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ घी फॉरगेट अ बाउल फुल। वो कहते हैं कि मैं एक ड्रॉप भी, घी की एक ड्रॉप भी लेने के बारे में नहीं सोच सकता, तो एक बोल पूरी घी की मेरे लिए लेना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। द शॉपकीपर सडनली स्पोक अप। शॉपकीपर जो था वो सडनली बोलता है और वो कहता है कि एंड सेड दैट वन शुड नॉट इग्नोर महेश दास एडवाइस। वो कहता है कि तुम्हें जो है महेश दास की एडवाइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लुकिंग ऑल द मोर वरीड नाउ। अब शॉपकीपर की बात सुनने के बाद जो शौकत अली थे वो और भी ज़्यादा थोड़े से वरीड हो जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं अब क्या होने वाला है मेरे साथ, ये शॉपकीपर ऐसा क्यों कह रहा है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट क्यों किया, क्यों मुझे एडवाइस दिया, ठीक है। सो शौकत अली पेड फॉर द लाइम एंड हरीड आउट ऑफ द शॉप। शौकत अली जल्दी से पे करते हैं जो उन्होंने लाइम दिया होता है और उस शॉप से बाहर आते हैं। वंस होम, अपने घर जाते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ फॉर अ बोल फुल ऑफ होम मेड घी। और अपनी वाइफ से कहते हैं कि होम मेड घी का पूरा बड़ा बाउल जो है वो लेकर के आओ मेरे लिए। वॉज ही दैट हंग्री शी वंडर्ड। सो उनकी वाइफ कहती, वाइफ वॉज सरप्राइज्ड। उनकी वाइफ जो थी वो सरप्राइज हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है सुनकर कि ये घी के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्या इनको भूख लगी है अपने, मतलब वो सोचती है क्या शौकत अली जो हैं वो हंग्री हैं, भूखे हैं। बट लुकिंग एट हर हस्बैंड्स फेस शी डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन हिम एंड poured the ghee into the biggest bowl she had. बट अपने हस्बैंड क्योंकि अभी बाहर से आए हैं तो वो ये सोचती हैं कि मुझे अभी कोई क्वेश्चन उनसे नहीं करना चाहिए। वो जाकर के एक बड़ा बोल जो है, सबसे बड़ा बोल जो है वो लेकर के आ जाती हैं, उसमें घी डालकर ले आती हैं और उन्हें दे देती हैं, ठीक है। So it was indeed shocking to see how शौकत gulped it all down at one go. अब वो देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि वो देखती हैं कि किस तरह से शौकत अली जो हैं एक बार में उस घी को, पूरा जो बड़ा बिगेस्ट बॉल था घी का भरा हुआ, वो कैसे पी जाते हैं एक ही बार में, ठीक है। शौकत picked up the bag and trudged. ओके, सो शौकत अली मतलब वो घी लेने के बाद, घी पूरा ख़त्म करने के बाद वो अपना बैग लेते हैं एंड trudged out. Okay, so just because he was very tired so that he walked with slow. Trudged means होता है थकावट की वजह से बहुत धीरे धीरे चलना, ठीक है। वो बहुत थक गए होते हैं इसीलिए अपना बैग लेते हैं और धीरे धीरे करके वो चलना स्टार्ट करते हैं। On the reaching the court he placed it at the feet of the emperor. कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट पहुंचने के बाद उनका जो लाइम होता है वो एम्पायर के
फीट, कदमों के पास में रख देते हैं, उनके चरणों के पास उसको रख देते हैं। हु समन 2 ऑफ हिज गार्ड्स टू टेक शौकत आउट। वहाँ पे जो गार्ड्स बैठे होते हैं, जिनको पहले से एम्पायर ने ऑर्डर कर दिया होता है, वो गार्ड्स शौकत अली को कोर्ट से बाहर ले जाते हैं, ठीक है। मेक श्योर ही ईट्स ऑल द लाइम सेड द एम्पायर। एम्पायर अपने गार्ड से कहते हैं कि ध्यान रखना कि ये पूरा लाइम जितना भी है बैग भरा हुआ, वो पूरा इसको खाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। पिटी मी डियर एम्पायर। ये सुनने के बाद एम्पायर जो शौकत अली होते हैं, वो कहते हैं कि मुझ पर दया कीजिए, प्लीज़ एम्पायर, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल डाई इफ़ आई ईट ऑल दैट लाइम। शौकत अली बर्स्ट इनटू टीयर्स। मतलब वो ज़ोर से जो है आंसुओं के साथ रोना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मैंने ये सारा लाइम खा लिया तो फिर मैं मर जाऊंगा। इस पर जो एम्पायर हैं वो कहते हैं कि यू डिज़र्व इट सेड द एम्पायर टर्निंग हिज फेस अवे। वो कहते हैं कि तुम यही डिज़र्व करते हो, जस्ट बिकॉज तुमने मेरी टंग जलाई है, इसीलिए तुम ये सेवरेस्ट पनिशमेंट जो है वो डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो आई होप दिस मच फॉर टुडे एंड रेस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस chapter we will continue in the other video. I hope you all are understood with this explanation, right students? So please subscribe my YouTube channel, and if you like my video then please like. Thank you so much.